Yeah. Okay. First, let's pray. Let me pray. आइए हम पहले प्रार्थना करें। Dear God, we thank you and praise you for giving us this precious time to come before you. God, as we gather here to share your words, to share your truth, God, without your enlightenment and illumination, without your leading and guidance, we cannot do anything. God, we are deeply corrupted. So God, may your Holy Spirit enlighten us, illuminate us, take control of our heart, our mind, so that in whatever we do, we can rely on you. We can speak according to your will, according to your truth. God, as we're going to start our your sharing, your words, may your Holy Spirit take control of our heart, our mind. Touch each and every one of our heart, our mind, so that when we listen or when we share your words, we all can open our heart and mind, and we can also, whatever we learn, whatever we need to know and heard, we can also able to put in our heart and mind, and we can live according to your words, according to your truths. So God, before we start anything, we also submit our heart, our time, our everything into your loving name. May all the glory, honor, and praises to your name. Amen. Okay, first of all, I would like to thank God for giving me this very, very precious time. इस बहुमूल्य समय के लिए सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। Secondly, our pastor, leaders, and those who are all present here, I am really thank you so much for giving me this opportunity. और हमारे पास्टर के लिए, कलीसिया के अगुवों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये समय दिया कि आपके सम्मुख में खड़ा हो सकूँ। Yeah, and Harley who's going to interpret for me, and thank you for that. Yes, so actually I'm also Indian, but I'm not able to speak Hindi. I'm sorry for that. मैं भी भारतीय हूँ लेकिन हिंदी नहीं जानता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। Yeah, I can speak one, two. When people speak to me, I can understand little, but I can't speak well. So I hope you can understand that. जब लोग मुझसे हिंदी में बात करते हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनको जवाब नहीं दे सकता। इस बात को आप समझ सकते हैं। Okay, thank you. So, yeah, actually, I will call you all brothers and sisters because we usually call brothers and sisters because there's no difference in the eyes of God. मैं परमेश्वर के सम्मुख में आप सबको भाई बहन मानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम दोस्त नहीं हो सकते, और मैं ऐसे ही सबका अभिनंदन करता हूँ। Okay, so first of all, this afternoon, what I really want to share you all is, before we start to read God's words, Bible verses, we need to aware what real situation is right now. आज मैं आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचन को शुरुआत करने से पहले आप सबको इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूँ कि हम किस समय में इस समय जी रहे हैं। Okay, so as we all know, the world situation is becoming more worse and worse. हम सब जानते हैं कि इस समय दुनिया में जो स्थिति है बहुत ही खराब और भयानक होती जा रही है। Disasters are becoming more worse and worse. It continuously coming one after another. और बहुत सी आपदाएं इस दुनिया पर आ रही है और लगातार एक के बाद एक आते ही जा रही है। People are suffering like anything. लोग बहुत ही सताव में जीवन जी रहे हैं। And love between people, love between brothers and sisters becoming more less and less, more become cold and cold. इन दिनों में जो प्रेम है भाई बहनों में आपस में वो भी ठंडा पड़ता जा रहा है और देखने में बहुत कम हो चुका है। So why this situation is really happening? We cannot predict by ourselves, we cannot think ourselves. ये ऐसी जो स्थिति है क्यों हो रही है, इस बात को हम अपने आप से समझ नहीं सकते या अपने आप से जान नहीं सकते। So first we can find out from God's words. और सब इसीलिए हम सबसे प्रथम परमेश्वर के वचन से इसके बारे में जानेंगे। So let's read together some Bible verses. आइए हम कुछ बाइबल के वचनों को साथ में पढ़ेंगे। Matthew chapter 24 verse 6 to 7. मत्ती उसका 24 अध्याय 6 से 7 वचन तक। And you shall hear of wars and rumors of wars. See ye there not be troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For a nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilences, and earthquakes in diverse places.
तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। And also another Bible verses, 2 Timothy और दूसरा तिमोथियुस chapter 3 verse 1 to 5. उसका 3 अध्याय 1 से 5 पद तक। But mark this, there will be terrible time in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. पर ये स्मरण रख कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भलों के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का रूप तो धारण करेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पाप में दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। Amen. Thank you. So, brothers and sisters, according to Bible prophecies, according to God's words, we are in the last days. मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार इस समय हम जो भविष्यवाणियों को देखते हैं, उसके अनुसार हम अंत के समय में पहुंच चुके हैं। That's why we are encountering different kind of environment difficulties, disasters, viruses, so many wars, so many all these things happening one after another. According to Bible verses, we are in the last days. So what exactly is in the last days? इसी वजह से कि हम अंत के दिनों में जीते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी कर रहा है, हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सामना कर रहे हैं, अलग अलग बीमारियां, वायरसेस और बहुत से आपदाओं का, प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अंत के दिन में पहुंच चुके हैं। Last days means the time of the Lord's return, and the one who do good things, he will be rewarded, and the one who do bad things, they will be punished. अंत के समय का मतलब क्या है कि परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय, और जिन लोगों ने भले काम किए वो उन लोगों को प्रतिफल देने के लिए, और जिन्होंने बुरे काम किए उनको सजा देने के लिए आ रहा है। So, brothers and sisters, we are believers. We are believers. So, now when we encounter this kind of things, when we come to know all these things, what is the right thing we supposed to do? मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इन सब समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इन सब समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं, तो हमें जो विश्वासी है, हमें ये सोचना है कि ऐसे समय में हम क्या काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में भला हो। So, according to God's words, when last days come, people will be lover of themselves, boastful, proud, abusive. They don't love the good. अंत के दिनों में जो परमेश्वर का वचन कहता है वो इस प्रकार से है कि मनुष्य लोभी होगा, स्वार्थी होगा, अपने आप को चाहने वाला होगा। Yeah, there's lots of things, more and more bad things happening, and also people think that, oh, I believe God, I know God, but they are denying the power of God. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि अंत के दिनों में ऐसी समस्या आने के समय में लोग जो है कहेंगे कि हम परमेश्वर को जानते हैं या परमेश्वर के हैं, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ को इनकार करेंगे। So, brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई बहनों, why we believe in God? क्यों हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है? We want to enter into His kingdom, right? क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में शामिल होना चाहते हैं। So now we are in the last days. If we really want to enter into God's kingdom, what we really need to do? हम अंत के दिनों में हैं, और हम अगर परमेश्वर के राज्य में शामिल होना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, तो मुझे और आपको क्या करना है? What should we seek? Where is the way? How can we be
protected from these disasters, and also how can we enter into God's kingdom? This is the right thing to seek at this very crucial time. मुझे और आपको खोजना है कि सही मार्ग कौन सा है या परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, ताकि आने वाली विपत्तियों से हम बचकर परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सके या प्रवेश कर सके। So now, the most very important things in our life is why we believe in God is we want to enter into God's kingdom and we want to have an eternal life. That's why we all believe in God. हम परमेश्वर पर इसलिए भरोसा करते हैं कि परमेश्वर जो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, हम उससे अनंत जीवन को प्राप्त कर सके और उसके साथ उसके राज्य में प्रवेश कर सके। So let's find out from God's words what kind of person exactly can able to enter into God's kingdom. आइए हम परमेश्वर के वचन में इन बातों को देखते हैं, खोजबीन करते हैं कि कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के राज्य में सचमुच प्रवेश कर सकेगा। Let's read some Bible verses. Matthew chapter 7 verse 21. मत्ती उसका 7 अध्याय और 21 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम उसको पढ़ेंगे। Matthew chapter 7 verse 21. मत्ती उसका 7 अध्याय और 21 पद में, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। So from this Bible verse it says very clearly, not everyone that said to me Lord Lord will not enter into God's kingdom. परमेश्वर का वचन यह स्पष्ट रूप से कहता है कि जो हे प्रभु मुझसे कहते हैं, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। Who called Prabhu? Who called Lord Jesus? Who called Prabhu? Prabhu? कौन हे प्रभु हे यीशु प्रभु कौन कहकर पुकारता है? आपसे सवाल कर रहे हैं। All the believers call God Lord Lord. Morning, evening, afternoon, all the believers they call Lord Lord. जो विश्वासी है या प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, वही हे प्रभु यीशु सुबह दोपहर शाम हर समय पुकारते रहते हैं। But those who call Lord, those who believe God, those all people will not enter into God's kingdom. लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, सब व्यक्ति जो हे प्रभु पुकारते हैं, हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा। What kind of people can enter into God's kingdom? तो अब हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि कौन है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। Who does the will of Father? यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है या उस पर चलता है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। So from God's word it says very clearly, only who does the will of Father can only enter into God's kingdom. परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से यहाँ कहता है कि जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है या उसकी इच्छा पूरी करता है, वही परमेश्वर के राज्य में वारिस होगा या शामिल होगा। Then what exactly is the will of Father? तो अब सोचने की बात है कि सच में परमेश्वर का इच्छा क्या है। Let's read some Bible verses to find out. First Thessalonians 4:3. पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 और 3 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम उसको जरा देखेंगे। परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीकी उसका 3 अध्याय उसका 5 पद। First Thessalonians chapter 4 verse 4 का 3 पद, पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय उसका 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। So the will of Father is to sanctify, is to become holy. परमेश्वर की पिता परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप पवित्र बने। So brothers and sisters, now we already know and very clear that if we really want to enter into God's kingdom and want to have eternal life, then we should do the will of God. We should be sanctified. We should become holy. परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय भाई बहनों हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि यदि हम अपने आप को पवित्र करेंगे, परमेश्वर की इच्छा वही है कि मैं और आप पवित्र बने, तभी हम उसके राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। Some people think that we can never become holy. To become holy is very impossible. Some people think in this way. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पवित्र होना असंभव है, हम किसी भी रीति पवित्र नहीं हो सकते। But is this true? Is this based on God's words? क्या ये सच है और क्या परमेश्वर का वचन पर ये बात आधारित है? Let's find out from God's word what God says. आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे कि परमेश्वर
पवित्र होने के बारे में क्या बात करता है। Leviticus chapter 11 verse 45. लेवी व्यवस्था 11 अध्याय उसका 45 पद, लेवी व्यवस्था उसका 11 अध्याय और उसका 45 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, मैं तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। From here, from God's word, it says very clearly, our God, He is holy, He is righteous. So, He told us very clearly, we should be holy. If we really want to enter His kingdom, we should also be holy. यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि हमें पवित्र होना है क्योंकि परमेश्वर भी पवित्र है, और यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा है मैं और आप पवित्र हो। Because in the God's kingdom, in the kingdom of heaven, holy people and God will live together. He will not allow the sinners, He will not allow those who are corrupted to enter His kingdom. परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गीय स्थान में केवल परमेश्वर और पवित्र लोग होंगे, कोई भी पापी, कोई भी दुष्कर्म करने वाला या परमेश्वर के वचन के विरोध में चलने वाला वहां पर किसी रीति प्रवेश ना करेगा। So let's read one more Bible verses to understand more clear. एक और बाइबल वचन को हम पढ़ेंगे ताकि हम इस बात को और स्पष्ट रीति से समझ सकें। Hebrews chapter 12 verse 14. Yes. इब्रानियों उसका Hebrews chapter 12 verse 14. 12 अध्याय और 6 पद, इब्रानियों 12 अध्याय और 14 पद, इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 14 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को या प्रभु को कदापि ना देखेगा। So brothers and sisters, from this God's word it says very clearly, if we are not holy, then we cannot see the Lord. If we are not holy, we cannot see the Lord means we cannot able to enter His kingdom. परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट रीति से मेरे भाई बहनों कहता है कि यदि हम पवित्र नहीं होंगे तो हम किसी भी रीति परमेश्वर को ना देखेंगे, और यदि हम परमेश्वर को ना देखेंगे तो हम ये स्पष्ट जान लें कि हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। So brothers and sisters, the most important things as a believers, as a true believer of God, what we really need to do is to become holy. और मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है यदि मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें पवित्र बनना जरूरी है। So brothers and sisters, are we holy now? मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हम पवित्र हैं? अभी इस समय क्या हम पवित्र हैं? क्या हम पवित्र हैं? जवाब Is anyone holy now? Is anyone holy here? Is anyone become holy? क्या आप में से कोई पवित्र है या पवित्र हो चुका है? Okay, don't worry, brothers and sisters. Whether we are holy or we are not holy, we will find out from God's words. हम पवित्र हैं या नहीं हैं, हम इसके बारे में परमेश्वर के वचन से ढूंढान करते हैं या परमेश्वर के वचन से हम खोजने की कोशिश करते हैं। Because we don't have any right to say, oh, I'm holy. Because what we think, what we understand, it's very lacking. Only God knows what is there in our heart and mind. हम ये बता पाना कि मैं पवित्र हूँ या नहीं हूँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर मेरे हृदय को, मेरे मन की विचारों को अच्छी तरह जांचता है और जानता है। After we believe Lord Jesus as our Savior, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, of course we don't do something bad things in front of people which can see by eyes. हम वो काम बेशक नहीं करते जो दुनिया के लोगों के सामने गलत है या लोग देख सकते हैं। But what we are, whether we are still committing sins, whether we are making the sins or not, this can be determined, cannot be determined by us. हम प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बावजूद हम गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हम कभी भी पहचान नहीं सकेंगे। After we believe God, after we believe Lord Jesus as our Savior, we still tell lies. We still have jealousy. We still have arrogance. We still have, we live for fame and fortune. We think that we know everything. We are boastful. We are arrogant.
this kind of things are still inside of us. हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद झूठ बोलते हैं, अपने आप को बढ़ाई करने के लिए या अपने आप का प्रचलन करने के लिए हम बहुत सी चीजों को करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। So, brothers and sisters, after we believe Lord Jesus, after we know God, why we still live in the sin? Why we cannot break free from the sins? परमेश्वर को ग्रहण करने के बावजूद मेरे प्रिय भाई बहनों, हम क्यों परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पाते? हम क्यों फिर भी पाप करते ही रहते हैं? So let's find out from God's words. आइए हम प्रभु के वचन की ओर एक बार फिर ध्यान करेंगे। Romans chapter 7 verse 17 to 19. रोमियो उसका 7 अध्याय उसका 7 से 17 से 19 पद तक हम पढ़ेंगे। Romans chapter 7 verse 17 to 19. रोमियो उसका 7 अध्याय 17 से 19 पद तक मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। So brothers and sisters, from this God's words, from this Paul's words, we can see very clearly. पौलुस के द्वारा लिखी गई इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं What kind of person Paul exactly is? पौल किस प्रकार का व्यक्ति था। Paul is a devout. He is very much devout to God. He sacrificed for God. He did lots of things. He also preached to everywhere. He has lots of done because of God's gospel. He also put him into jail as well. And also in Bible, Roman, Galatian, Philippians, so many things are written by Paul. पौलुस जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति था, उसने अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया था और बहुत जगहों में जाकर उसने परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। परमेश्वर के कारण सताया गया और यहाँ तक कि उसने जेल की भी सजा को सहा है प्रभु यीशु मसीह के लिए। उसके साथ साथ उसने बहुत सी पत्रियां या किताबें इस बाइबल में लिखी है। But still then what Paul says here. लेकिन फिर भी पौलुस यहाँ पर क्या कहता है? His belief is very strong. He is very much devoted. He also dedicate his life for God. उसका विश्वास बहुत दृढ़ है। उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया और परमेश्वर के लिए बहुत कार्यों को किया है। So, according to his words, we can say, as it is no longer I myself who do it. उसके इस यहाँ पर पढ़े गए वचन के अनुसार वो कहता है कि बुरे काम करने वाला मैं नहीं हूँ, but it is sin living in me. लेकिन वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। For I know that God itself does not dwell in me. क्योंकि परमेश्वर जो है वो बुराई में वास नहीं करता। In my sinful nature, that is in my sinful nature. लेकिन वो पाप जो है वो मेरे बुरी इच्छा में बसा हुआ है। So from these words Paul says very clearly, even though he don't do it, but the sin living inside of him, the sinful nature which is inside of him, let him do the bad things. Even though he sorry. So from this Paul's words we can see very clearly, Paul wants to do good thing. यहाँ पर पौलुस के वचन के अनुसार हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पौलुस अच्छी बातों को, अच्छी चीजों को करना चाहता है, but he can't able to do it. लेकिन वो इसको करने में असमर्थ है। Paul doesn't want to do the bad things. पौलुस किसी भी रीति से बुराई को नहीं करना चाहता, but he keeps on doing. लेकिन अपने आप वो बुराई उसके द्वारा हो रही है। What is the reason behind it? Why Paul doesn't want to do bad things, but he keeps on doing the bad things? But even though he want to do the good, but he can't able to do the good. Why? क्यों पौलुस बुराई को करता जा रहा है जबकि वो उसको करना नहीं चाहता? परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे कि वहां लिखा है, मैं अच्छा करना चाहता हूं लेकिन फिर भी मैं अच्छाई नहीं कर पा रहा। इसका कारण क्या है? Because sinful nature is inside of him. क्योंकि पाप का स्वभाव उसके अंदर आज भी है। So that's why even though we believe God, even though we accept Lord Jesus as our Savior, we still have the sinful nature. That's why sinful nature let us
commit sins again and again. बेशक हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, फिर भी जो पाप का स्वभाव मुझ में और आप में बसा हुआ है वो हमें बुराई करने पर मजबूर करता है। Okay, then what exactly is sin and what exactly is sinful nature? Let's find out. हम इस बात को अभी थोड़ा सा मनन करेंगे कि पाप क्या है और पाप का स्वभाव क्या है, दोनों में अंतर क्या है, हम इस बात को देखेंगे। Let's take one example, tree. हम पेड़ का उदाहरण लेते हैं। There's a tree growing outside there. एक पेड़ है जो बाहर उग रहा है। We will take axe or knife and we will cut down the tree. हम कुल्हाड़ी या आरी लेकर उसको हम काट देते हैं और गिरा देते हैं। After that, above part it will be die. लेकिन उस समय में जो ऊपर का हिस्सा है, कटा हुआ हिस्सा, वो मर जाता है। After few days or few months from that place itself, new tree started to grow. लेकिन जो हिस्सा जमीन के अंदर है, वहां से हम देखेंगे कि कुछ महीने या कुछ हफ्तों के बाद वहां पर नई शाखाएं निकलना आरंभ कर देती है। Why? क्यों? Why tree is not totally died? क्यों वृक्ष पूरी रीति से मरा नहीं है? Do you know the reason? क्या आप जानते हैं उसका कारण को कि वृक्ष पूरी रीति से मरा क्यों नहीं है? Very true. Because root is under the ground. क्योंकि जड़ अभी भी जमीन के अंदर में उपस्थित है, मौजूद है। So that's why even though the tree is cut off and the above part is already dead, but still the root is inside. Because of that, the new tree started to grow from there itself. बेशक जो पेड़ है ऊपर से काट दिया गया, ऊपर का हिस्सा जो कटा हुआ है वो मर चुका है, लेकिन जमीन के अंदर अभी भी उस पेड़ की जड़ें हैं, जिसने उसको फिर से उगने के लिए क्षमता दी है। So that's why, brothers and sisters, if we really want to kill the tree totally, then we have to remove from the root. अगर हम उस पेड़ को बिल्कुल ही मारना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, तो हमें उसको जड़ समेत उखाड़ना पड़ेगा। So that's why, brothers and sisters, after we accept Lord Jesus as our Savior, He already forgive our sins, but still the sinful nature is there. So that's why those sinful nature let us commit sins again and again. मेरे प्रिय भाई बहनों, बेशक हम प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा कर देता है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे पाप का स्वभाव है वो हमारे हृदय में वास करता रहता है। So then, what exactly is sin and sinful nature? We will know now. अब हमें पता चल चुका है कि पाप क्या है और पाप का स्वभाव क्या है। Sin refers to outer behavior. जो पाप है वो हमारे बाहरी मनुष्यत्व को या बाहरी चाल चलन को दिखाता है। Like murders, जिस प्रकार से हत्या, theft, चोरी करना, false witness, झूठी गवाही देना, adulteries, व्यभिचार करना, fornication, किसी को माफ ना कर पाना, these are all type of sin. ये जो है इनको पाप कहकर संबोधित किया जाता है। Then what exactly is sinful nature? तो पाप का स्वभाव क्या है? Sinful nature is like the root of a tree. जो पाप का स्वभाव वो पेड़ की जड़ के समान है। If it is not removed, अगर वो जड़ नहीं निकाली जाएगी, the tree will grow up again and again. तब वो after पेड़ being cut. काटने के बावजूद बढ़ता ही जाएगा। So our sinful nature is हमारा जो पाप का स्वभाव है वो ये है, greed, लालच, selfish, अपने स्वार्थी, jealousy, दूसरों से जलन रखना, arrogance, दूसरों के प्रति अपने आप को बहुत कुछ दिखाना, evil thoughts, हमारे बुरे विचार, laziness, आलसीपन, stubborn, जिद्दी, deception, आज्ञाकारी ना होना, slandering, etc. इस प्रकार के बहुत सी बातें हैं। So this is the sinful nature. और यही है जो पाप का स्वभाव है। So I hope you can understand what is the difference between sin and sinful nature. अब मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे पाप और पाप के स्वभाव में क्या अंतर है।
समझ Can you all understand what's between sin and sinful nature? आप लोग समझ पाए ना, पाप और पाप के स्वभाव में क्या अंतर है? हाँ या ना? हाँ या ना? So, okay, so after we believe God, we take Lord Jesus as our Savior, we don't do the sins, the outer things which people can see. इसी समान हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद हम वो काम नहीं करते जो वो पाप जो लोग देख सकते हैं उसको हम नहीं करते हैं. But the sinful nature, we have the selfish, greed, jealousy, arrogance, stubbornness, deception, slandering still exist in our mind and heart. लेकिन फिर भी जो पाप का स्वभाव है, जैसे कि लोग बुरी लालसा, व्यभिचार या विभिन्न प्रकार के जो काम बताए गए कि दूसरों से ईर्ष्या रखना, वो हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में हमेशा वास करते रहते हैं. So if we don't remove all these things, then we can never become holy. अगर हम ये सारी चीजों को अपने हृदय से नहीं निकालेंगे तो हम पवित्र कभी भी नहीं हो सकते हैं. So if we are not become holy, then we cannot enter into God's kingdom. और जब हम पवित्र नहीं होंगे तो हम किसी भी रीति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं. So that's why, brothers and sisters, this is a very crucial time. As we know from God's words, we are in the last days. मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत कठिन समय है जिसमें मैं और आप जी रहे हैं. जैसा हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, ये अंत के दिन है. So to become holy, we need our heart and time to offer to God. पवित्र होने के लिए हमें अपने हृदय को और अपने समय को परमेश्वर को चढ़ाने की आवश्यकता है या परमेश्वर को देने की आवश्यकता है. There is nothing impossible for God. Everything is possible for God. परमेश्वर के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है. हर एक काम परमेश्वर के लिए संभव है. So if we really want to know the way, how can we be purified? How can we become holy? Everything is in God's words. हम अगर ये जानना चाहते हैं कि हम किस रीति से पवित्र होंगे या हम किस रीति से पवित्रता का हासिल कर सकते हैं, तो हर एक बात परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है. So we know everything is God's word. But if we don't come before God, if we don't give our heart and time to God, then how can we become holy? हमें पता है कि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के सम्मुख में नहीं आएंगे या अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं करेंगे, तो हम किसी भी रीति पवित्र नहीं हो सकेंगे. God is loving kindness. He is always enduring for us. He gives everything for us. But God doesn't demand so many things from us. But what He requires from us is our heart and mind. परमेश्वर प्रेमी और दयालु परमेश्वर है. वो हमारे लिए वो हर एक चीज करता है जो हमारे जीवन में आवश्यक है, और उसके बदले वो कुछ नहीं मांगता है. केवल परमेश्वर चाहता है हम अपने हृदय को, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दें. As a true believer, as a believer of God, परमेश्वर के सच्चे विश्वासी या परमेश्वर के विश्वासी होने के कारण every day we should dedicate our heart and time to God at least 2 hours by reading His words. हर एक दिन हमें 2 घंटे परमेश्वर को देने हैं उसका वचन पढ़ने के लिए, और अपने हृदय को भी परमेश्वर को समर्पित करना है हर एक दिन में. So that's why, brothers and sisters, today we don't have much time, so I want to share a lot, but still the time is limited, so I will not talk much. But last point, last Bible verses, John chapter 17, verse 17. मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन समय बहुत ही सीमित है, इसलिए हम आखिरी में कुछ बाइबल वर्सेस को पढ़ेंगे. John chapter 17, verse 17. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 17 पद. जॉन चैप्टर 17 वर्स 17. परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है. So from here, if we really want to become holy, if we really want to be sanctified, then what we are going to use? परमेश्वर का वचन हमने यहाँ पर देखा कि हम सचमुच अगर पवित्र होना चाहते हैं या पवित्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे और आपको क्या करना है? We will use His truth, His words. परमेश्वर का वचन कहता है हम उसकी सच्चाई और उसके वचन को पकड़ ले या इस्तेमाल करें. But if we don't come before Him, if we don't read His words, then how can
we gain the truth? How can we live according to His words? और अगर यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आएंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं मनन करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो हम किस रीति पवित्र हो पाएंगे? So if you need one Bible verse, you can write it down. Hebrew chapter 4 verse 12. आप एक बाइबल वचन को सब लोग अपने किताबों में या बाइबल में लिख लीजिए। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 12 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। इब्रानियों 4 अध्याय, Hebrew chapter 4 verse 12, उसका 12 पद में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। So brothers and sisters, from God's word it says very clearly, God's word has authority and power. There is nothing impossible to God. हमने यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, अधिकार है और कुछ भी काम करने से उसको कोई रोक नहीं सकता। So that's why if we really want to become holy, we should come before God regularly and we should read His words. We should pray. तो अगर हम पवित्र होना चाहते हैं तो हमें निरंतर परमेश्वर के सम्मुख में आना है, प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ना है, मनन करना है और उससे प्रार्थना करना है। Brothers and sisters, every Sunday you are coming and worshiping God and you learn some words of God, so that God's words should be in your heart and in your mind. हम हर एक इतवार को मेरे प्रिय भाई बहनों यहाँ पर आते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन सुने हुए वचन को हमें अपने हृदय में और अपने मनों में रख छोड़ना है। Let the words of God, let the truth take control of our heart and mind. परमेश्वर का वचन और सत्य हमारे हृदय और मन का चलाने वाला या उसको अपने नियंत्रण में रखने वाला होना चाहिए। Because if there is not, if we don't have the truth and if we don't have the words in our mind and heart, then our that corrupted physical body, we will do the things by our own. क्योंकि यदि परमेश्वर का वचन और सच्चाई मेरे हृदय में, मेरे मन में नहीं होगी, तो जो मेरा शरीर है, जो पाप के स्वभाव से भरा हुआ है, वो सारे पाप करने के लिए मुझे मजबूर करेगा। So don't let our physical desire, physical flesh control us, but let the words of God, let the truth take control of our heart, our mind, so that in whatever we do, we can do according to God's words. परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि हमारा जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, शरीर की इच्छाएं हैं, वो हमें नियंत्रण ना करे, बल्कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको नियंत्रण करे, ताकि जो परमेश्वर मुझे पवित्र करना चाहता है और परमेश्वर की जो इच्छा है वो मेरे और आपके शरीर से और आत्मा से परमेश्वर के सम्मुख होती रहे। So that's why, brothers and sisters, every day we require at least 2 hours to come before God by reading His words, so that every day, even though in one day if you learn so much you will forget, but every day if you dedicate your heart and time to God for at least 2 hours, then the words which you learn, the truth which you know, that can be in your heart and mind. मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए लगातार प्रतिदिन मुझे और आपको 2 घंटे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, मनन करना है, क्योंकि हम एक दिन जो पढ़ते हैं हो सकता है हम भूल जाएं, लेकिन यदि प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, कम से कम 2 घंटा, तो लगातार वो वचन मेरे हृदय में वास करते रहता है, मुझे अगुवाई करता है। So the more we come before God, the more we read His words, we will gain the work of the Holy Spirit. जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उतना अधिक पवित्र आत्मा मेरे और आपके हृदयों में काम करना आरंभ करता है। We will understand, when we read God's words, we will understand more, and we will also have hunger and thirst for God's words. The more we read His words. उसके बाद जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा उतना अधिक हमें समझाएगा और हम उतना अधिक मन में लालसायित होंगे परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। So if we keep on practicing in our life like this, then definitely in someday, when God returns, we can also prepare for our good destination. यदि हम इसी प्रकार से अपने अभ्यास करते रहेंगे परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के लिए जीने के लिए, तो निश्चय जिस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको लेने आएगा, हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे।
Yes, so yeah, if I have time, maybe we will come next time to share what kind of truths can make us very purified and become holy, and we can able to enter this kingdom. We will, if we have time in future, we will talk about more this. But, yeah. आने वाले समय में यदि परमेश्वर की इच्छा है हम दोबारा आएंगे और सत्य के किन कार्यों को मुझे और आपको करना है पवित्र होने के लिए, उस बारे में हम और अधिक बातचीत करेंगे. So yeah, for today I will try to conclude here. आज के लिए मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ. So the most important thing what we learned today, please don't forget it. आज हमने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसे किसी रीति ना भूलें. When you go home or when you have a free time, read God's word so that wherever you go, whatever you do, God's words, the truth, God will lead you, guide you. Then you will never make mistake. You will never do wrong. अगर यहाँ से जाने के बाद, घर जाने के बाद या अपने खाली समय में बार बार परमेश्वर के वचन को पढ़िए, ताकि आपके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना हो या ऐसा कोई काम ना हो जो परमेश्वर से आपको दूर करे या आपको अपवित्र करता रहे. So this is what I want to share. There's lots, but yeah, because of time, so I will stop here. Thank you so much for your time and for your passion. So let's not, whatever we learn, let's not forget it, but put into practice. यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, लेकिन जो बातें हमने सीखी है उसको भूले ना, बल्कि अपने अभ्यास में प्रतिदिन के कामों में उसको लेकर आए. Thank you all. May God bless you. सबको परमेश्वर आशीष दे.